Welcome to Datagenics. Our today's topic is what is data analytics. आज हम लोग देखेंगे data analytics क्या है. Data analytics is a strategic approach that transforms raw data into actionable insights. From customer preferences to market trends, data analytics empowers businesses to make informed decisions, optimize processes, and enhance overall efficiency. It's like having a crystal ball for your business. It looks at all the information you have and turns it into useful insights. This helps you make better decisions, improve how things work, and basically become a business genius. So basically डेटा एनालिटिक्स में आप जो भी आपका रॉ डेटा प्रोवाइड करते हो उसको वो एक एक्शनेबल इंसाइट के फॉर्म में आपको तैयार करके देता है, जिसके बेस पे जिसके मदद से आप अपना बिजनेस काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, आप अच्छे डिसीजन प्रॉपरली ले पाते हैं, आप आपका प्रोसेस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड आपकी एफिशिएंसी आप ओवरऑल इंक्रीज कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन डिसीजन मेकिंग. As organizations navigate through a sea of information, harnessing the power of data analytics becomes crucial as it offers invaluable insights that lays the foundation for informed and effective decision making. अब इफ़ेक्टिव डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं डेटा एनालिटिक्स के बेस पे. जैसा कि आपको पता होगा, ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल मासिव अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है. अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो एवरी मिनट एवरी सेकेंड हमारा रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में मासिव अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है और हम लोग उसको लॉग भी करते हैं. देन डेटा एनालिटिक्स की पावर के थ्रू हम काफ़ी सारे इनवैल्यूएबल इंसाइट्स उसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं और एक बेटर डिसीजन हम ले सकते हैं. देन why data analytics is significant. Data analytics is crucial because it helps us navigate through the data driven world we live in. हमारे पास में जितना भी डेटा अवेलेबल है, हम डेली डेटा के साथ में ही खेल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ में काम कर रहे हैं. इट्स लाइक हैविंग अ GPS फॉर डिसीजन मेकिंग एंड हैविंग अ गाइड that helps us make better choices and operate more efficiently. डेटा एनालिटिक्स एक हमारा जीपीएस की तौर पे काम कर सकता है जो कि हमें गाइड करता है और हमको बेटर चॉइसेस लेने के लिए हेल्प करता है. नाउ वन ऑफ द फैक्टर that makes data analytics significant is the decision making. At its core, data analytics empowers decision makers with a wealth of insights derived from comprehensive data analysis. This wealth of information enables organizations to make informed decisions, minimizing uncertainties and enhancing the probability of success. Next, we have the precision and accuracy. Data analytics brings precision and accuracy to decision making. By leveraging data driven insights, organizations can base their decisions on concrete evidence, leading to more effective strategies and outcomes. This precision eliminates guesswork, providing a solid foundation for confident decision making. Next, we have the trends and opportunities. By analyzing historical data and patterns, businesses can anticipate emerging trends and identify new opportunities. This proactive approach enables organizations to stay ahead of the curve, adapting to market changes and capitalizing on trends before they become mainstream. This proactive approach enables organizations to stay ahead of the curve, adopting to market changes and capitalizing on trends before they become mainstream. Customer centric strategies. Understanding customer behavior is a key for success. Data analytics allows businesses to gain deeper insights into customer preferences, buying patterns, and satisfaction levels. With this knowledge, organizations can tailor their strategies to meet customer expectations, fostering loyalty and gaining a
competitive edge on the market. एक बेटर डिसीजन लेने के लिए हमारे पास में हमारा वेल कलेक्शन ऑफ डेटा होना चाहिए, जिसके बेसिस पे हम एक्शनेबल इंसाइट्स ले सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन ले सकते हैं। और वो कॉन्क्रीट डिसीजन हमारे प्रिसाइज एंड एक्यूरेट हो सकते हैं डेटा एनालिटिक्स की मदद से। और इन अगर हमारे डिसीजंस प्रिसाइज और एक्यूरेट रहे तो उनके बेसिस पे हम ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ हम फोरकास्ट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। एंड अल्टीमेटली हमारा जो गोल है कि कस्टमर को हमको सेटिस्फाई करना है, तो उसके लिए हमको उसका बिहेवियर भी पहले समझना पड़ेगा, तो वो भी हम डेटा एनालिटिक्स के थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन. Efficient resource allocation is a critical aspect of sustainable business practices. Data analytics helps organizations identify areas for improvement, streamline processes, and optimize resource allocation. This leads to cost savings, increased productivity, and a more agile एंड रेजिलियंट बिजनेस मॉडल. डेटा एनालिटिक्स हमको हेल्प कर सकता है रिसोर्स ऑप्टिमाइज करने के लिए, जो कि हमारा वो एरिया आइडेंटिफाई करके बता सकता है हमें इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारे प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकता है, हमारे रिसोर्सेस को हम एकदम ऑप्टिमिस्टिक मैनर में एलोकेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा सारा प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो सकता है. देन वी हैव द रिस्क मैनेजमेंट. एवरी डिसीजन इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ रिस्क. Data analytics serves as a powerful risk management tool by assessing potential risks and providing insights into their likelihood. This enables organizations to make decisions that balance innovation with a calculated approach, minimizing risk and maximizing opportunities. Data analytics के थ्रू हम हमारा रिस्क भी मैनेज कर सकते हैं डेटा एनालिसिस के थ्रू, और हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं, जिससे कि हमारा रिस्क काफ़ी कम हो सकता है. देन वी हैव द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. ऑर्गेनाइजेशंस कैन एनालाइज द आउटकम्स of their decisions, identify areas for enhancement, and refine strategies accordingly. ऑर्गेनाइजेशन डेटा एनालिटिक्स की मदद के थ्रू कुछ जो भी डिसीजन ले सकते हैं उसको वो पहले ही फोरकास्ट करके देख सकते हैं, उसका इम्पैक्ट स्टडी कर सकते हैं, एंड उसको अकॉर्डिंगली ऑल्टर भी कर सकते हैं. दिस कंटिन्यूस फीडबैक लूप एंश्योर्स एडॉप्टेबिलिटी, कीपिंग बिजनेस कॉम्पिटिटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स. डे टू डे मार्केट हमारा चेंज होते रहता है, और इसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, और डेटा एनालिटिक्स ही वो एक माध्यम है जिसके थ्रू हम प्रिपेयर हो सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव हाउ डेटा एनालिटिक्स वर्क्स. इसका पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्शन. इट स्टार्ट्स विथ गैदरिंग रिलेवेंट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. हमारा डेटा काफ़ी अलग अलग सोर्सेस में रह सकता है, अलग अलग फाइल्स में हो सकता है, अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है. जैसे कि कोई डेटा हमारा डेटाबेस में है, कोई फ्लैट फाइल जैसे एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल में हो सकता है, टेक्स्ट फाइल में हो सकता है, हमारा डेटा इमेज फॉर्म में हो सकता है, या किसी भी और फॉर्म में हो सकता है. देन वी हैव द प्रोसेसिंग एंड क्लीनिंग. The data is first cleaned, ensuring accuracy and eliminating errors for reliable results. पहले हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया अलग अलग सोर्सेज से, फिर हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे, क्लीन करेंगे. कोई मिसिंग वैल्यूज़ होगी तो हम उसको ट्रीट करेंगे, कुछ अदर उसमें क्वालिटी इश्यूज़ होंगे डेटा में तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, एंड आफ्टर डैट ही हम उसको एनालाइज करेंगे. Then we have analysis. Sophisticated algorithms dive into the data, identifying patterns, trends, and correlations. After collecting, cleaning comes the analysis part. इसमें काफ़ी सारे sophisticated algorithms होते हैं जो कि डेटा को स्टडी करते हैं, उसमें के पैटर्न को एनालाइज करते हैं, क्या ट्रेंड्स है उसको स्टडी करते हैं, कोरिलेशंस भी वो लोग स्टडी करते हैं, एंड हमें आउटपुट मिलता है. और ये सारे आउटपुट को हम
अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है, डेट इज़ विजुअलाइजेशन. To make the findings easy to understand, data analytics often employs visual tools like charts and graphs, turning complex data into clear actionable insights. हमारा जो भी डेटा हमने एनालाइज किया उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं अलग अलग वेराइटी ऑफ चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, जिससे कि हमारा एक जो कॉम्प्लेक्स डेटा होगा, एक मासिव अमाउंट ऑफ डेटा होगा, उसको हम लोग एक क्लियर इंसाइटफुल फॉर्म में देख सकते हैं, जिससे कि हम कुछ एक्शन फर्दर उस पर ले सकते हैं, जिसकी तरफ हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंटरप्रिटेशन. स्किल्ड एनालिस्ट इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड एक्शनेबल रिकमेंडेशंस फॉर बिजनेसेस. नाउ जो एनालिस्ट होते हैं, डेटा एनालिस्ट्स पर्टिकुलर होते हैं, वो रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, उसमें से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उसके बेसिस पे वो रिकमेंडेशन अपने बिजनेसेस के लिए प्रोड्यूस करते हैं. एंड आफ्टर दैट कम्स द डिसीजन मेकिंग पार्ट, decision making. With these insights, organizations can make informed decisions, optimize processes and stay ahead of the competition. सो कंपटीशन को बीट करने के लिए या उससे एक कदम आगे रहने के लिए हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया, प्रोसेस किया, क्लीन किया, एनालाइज किया, विजुअलाइज किया, इंटरप्रेट किया, उसके बेसिस पे अब हम कुछ डिसीजन लेंगे, जिससे कि हमारा बिजनेस कंपटीशन वालों से एक कदम आगे रहेगा, या कहिए कि जो भी कंपटीशन मार्केट में फ़िलहाल चल रहा है हम उससे एक कदम आगे रहेंगे. नेक्स्ट कम्स दी टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स. डेटा एनालिटिक्स के टाइप्स क्या क्या है. नंबर 1 वी हैव दी डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डेटा टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ हैपेंड इन अ गिवन पीरियड. डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हमको पता चलता है कि एक गिवन पीरियड में क्या हुआ है. इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द पास्ट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स. हमको जो भी पास्ट में ट्रेंड्स मिलते हैं, पैटर्न्स मिलते हैं, वो इसमें डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में स्टडी करने के लिए मिलते हैं. नेक्स्ट वी हैव द डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स. इट फोकसेस ऑन एनालाइजिंग डेटा टू डिटरमाइन व्हाई अ सर्टेन इवेंट और आउटकम ऑकर्ड. इट डेटा डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स बेसिकली हमको बताता है ये इवेंट क्यों हुआ, वाई, एंड इट हेल्प्स आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज बिहाइंड ट्रेंड्स और एनामलीज. और ये हमको बेसिकली एक रूट कॉज एनालिसिस प्रोवाइड करता है, ट्रेंड्स प्रोवाइड करता है, एनामलीज प्रोवाइड करता है. देन वी हैव द प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स. दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर आउटकम्स. प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में हम लोग फ्यूचर आउटकम्स प्रेडिक्ट कर पाते हैं, और इट एम्प्लॉयज़ स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स टू फोरकास्ट ट्रेंड्स. और ये प्रेडिक्शन करने के लिए वो स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम यूज़ करता है, मशीन लर्निंग यूज़ करता है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स. देन वी हैव द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. इट गोज़ बियॉन्ड predicting outcomes by providing actionable recommendations. प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स से आप जैसे कि समझ पाएंगे, जैसे कि डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है कि हमको कौन सी दवाई खाना है, हमें क्या करना है, वैसे ही प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हमें एक्शनेबल रिकमेंडेशंस मिलते हैं टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस. इट सजेस्ट्स ऑप्टिमल एक्शंस टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स. नेक्स्ट वी हैव द एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स. तो कुछ ऐसे डे टू डे एग्जांपल्स जहाँ पे डेटा एनालिटिक्स बेसिकली यूज़ हो रहा है. सम ऑफ द एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए हैं, जैसे कि एक उसमें से है हेल्थ केयर सेक्शन. इम्प्रूविंग पेशेंट केयर एंड ट्रीटमेंट आउटकम्स थ्रू प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स. प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के थ्रू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर सर्टेन कंडीशंस है तो सर्टेन पेशेंट हमारा फ़िलहाल कौन से कंडीशन से गुज़र रहा है, और इसका प्रेडिक्ट हमारा मशीन लर्निंग मॉडल और हमारा प्रेडिक्टिव मॉडल हमें एक आउटकम दे सकता है कि इस पेशेंट का पर्टिकुलरली जो भी सिम्टम्स है उसके बेस पे इसके साथ में क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं.
Then we have the finance, detecting fraudulent activities and enhancing risk management. जैसे कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड वगैरह होता है एंड काफ़ी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती है फाइनेंस में, तो वो भी हम लोग डेटा एनालिटिक्स के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं. देन ई कॉमर्स, पर्सनलाइजिंग कस्टमर एक्सपीरियंसेस एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस. कस्टमर का बाइंग बिहेवियर स्टडी करके हम उसके लिए पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस भी क्रिएट कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव दी मार्केटिंग, टारगेटेड कैंपेन्स बेस्ड ऑन कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस. अगर हमें पता है कि एक सर्टेन एरिया में या सर्टेन लोकेलिटी में जो भी कस्टमर्स रहते हैं या नंबर ऑफ़ पीपल्स है, उनका एक सर्टेन बिहेवियर है, उनका सर्टेन प्रेफरेंसेस है, तो उसके बेस पे हम वहाँ पे टारगेटेड कैंपेन रन कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए. इन दिस वे डेटा एनालिटिक्स हेल्प्स अस इन आवर डे टू डे लाइफ.